class we'll focus on the characteristics parameters of the covalent bonds, and we'll focus the three parameters which are there in our course, that is bond energy, bond length and bond angle. So we'll talk one at a time, and let's focus on the bond energy. This is the energy or the amount of energy that is required to break 1 mole of a bond. Suppose if you want to break the bond, you need certain amount of energy. Then these particular atoms, whatever is been present in them, will be separated. So that is the case of bond energy. आपको समझ में आ रहा है? जैसे हाइड्रोजन है, this hydrogen is a molecule and it has 2 atoms. Now you want to you have to break this bond. So you need certain amount of energy to break them so that you get the same kinds of atoms, and the bonded atoms get separated and they comes in the gaseous state. तो ये टूट के किस में आ जाए, आपके गैशियस स्टेट में आ जाए, तो दैट एनर्जी इज़ बीन रिक्वायर्ड. वो एनर्जी कौन सी होगी आपकी? दैट इज़ योर बॉन्ड एनर्जी. दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड. बट दिस पर्टिकुलर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन यस, यू कह सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉन्ड एनर्जी इज़ बीन measured on the basis of the 2 factors or 2 things that you have to keep it in mind. Now what are the cases? First is your you can say size of the atoms, and second is your multiplicity of the bonds. So let comes to the first part, size of the atom. So in this case of size of the atom means larger the size of the atom in the bond formation, lesser is the extent of overlapping, and therefore lesser is the bond energy. Suppose a particular atom is there whose size is big, right? So if size is big for an atom or large, that is participating in the bond formation, ये दूसरे किसी atom के साथ participate करेगा, ठीक है? So size of the atom is big or larger, so you need there will be lesser bond energy is required. Why you need a lesser beam? जो size बड़ा है, then why it's a lesser amount of bond energy is been required? The point is that they basically, you know ना, in the covalent parts, these atoms, their orbits or orbitals, they overlap each other, है ना, ये overlap की condition आती है. So the point is that the lesser is the extent of overlapping over here. So more the size, lesser is the extent of overlapping. और उस कंडीशन में क्या होगा, जब कम ओवरलैपिंग होगी इसमें, तो आपको बॉन्ड एनर्जी भी कम लगेगी. Now the next point arises about the multiplicity of the bonds. Now what does this means? What is the concept of it? Now if you are increasing the multiplicity of the bond, then what will be the factor that is affecting on the magnitude of the bond energy? बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास सिंगल बॉन्ड है, और ऐसी आपके पास ऐसा बॉन्ड है जहाँ पे आपके डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इस कंडीशन में किसकी आपकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी? भाई आपको किसमें ज़्यादा, अंडरस्टूड वाली बात है कि आप में इसमें ज़्यादा आपकी बॉन्ड एनर्जी होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका बॉन्ड का साइज़, मतलब मल्टीप्लिसिटी क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ क्या है, यू हैव सिंगल बॉन्ड. तो ओवर हियर यू नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड, सो दैट यू गेट द एटम्स विच आर बॉन्डेड टुगेदर. अब ऐसी आपके पास ये कंडीशन है, और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किस में चाहिए होगी? ट्रिपल बॉन्ड में. तो अब यहाँ टीचर आपको कोई भी एग्जांपल दे सकता है. आई कैन आस्क यू एंड आई आस्क यू कि प्लीज़ टेल मी इन विच द बॉन्ड एनर्जी इज़ मोर. तो you will automatically tell me ma'am nitrogen, but I'll ask you the reason about it. Why? So then what you will see, because you will say about this thing, multiplicity of the bonds, you will talk about that is higher in comparison to these two. That's why it has more bond energy is required. Now let's talk about the bond length. Now the bond length is, I have written the definition, the average distance between the center of the nucleus of the 2 bonded atom is the, in a molecule, is called as the bond length. So that is your bond length. Suppose I made 2 atoms and the average distance you have to calculate. You take out the average of this distance, and this is your bond length. Now what is the point that it depends on 2 factors over here.
that you have to focus a point. ये तो समझ में आ रहा है ना, from the center of the nucleus you have to focus of the two bonded atoms. So उसका आपको एवरेज डिस्टेंस लेके चलना है, दैट कंप्राइज योर बॉन्ड लेंथ. इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस टू फैक्टर्स, द सेम फैक्टर्स विच वर फोकसिंग ऑन द बॉन्ड एनर्जी. तो आई हैव रिटन द बोथ फैक्टर्स, बट आई हैव रिटन अ स्मॉल रिलेशनशिप ऑल्सो. द साइज ऑफ द एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मल्टीसिटी ऑफ द बॉन्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द बॉन्ड लेंथ. फ्रॉम दैट यू कैन गेट इन सिनेरियो, if the size of atom is large, the bond length will also be large, it will be greater. This thing is there. If it is less, then bond length will be also less, vice versa, both the things are there. Multiplicity of bond is, if it is more, then bond length means अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उस कंडीशन में बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, कम होगी. That you have to keep it in mind, है ना. If it is small, then it will be large. If it is big, then it will be small. So that is the case, you have to keep it in mind. Now the last factor that come across is bond angle. I'm just showing you all about the bond energies values. देखो ये बॉन्ड बना हुआ है, इसमें बॉन्ड एनर्जी कितनी आ रही है ना, सबके में एग्जाम्पल दिए हैं. there is no need to learn, but have a look on it. Then come to this part, bond length. You can see in picometers been written. हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा उसमें कितना है ना, इधर देखो, है ना. तो दिस वे यू कैन फोकस ऑन इट. जैसे यहाँ देखो, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है ना, और मल्टीसिपिलिटी जो बेसिकली देखा जाए यहाँ, सॉरी मल्टीसिपिलिटी देखी जाए वो बॉन्ड की कम है ना, और यहाँ ज़्यादा है. तो यहाँ देखो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ कम हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया. दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट हाउ इज़ बीन देयर. नाउ लेट्स फोकस ऑन बॉन्ड एंगल. जैसे यही जब आपके बनते हैं, आप बनाते हो कोई भी बॉन्ड, तो उसमें आपके एंगल्स जनरेट अप हो जाते हैं. डेफिनेट एंगल होते हैं एग्जिस्ट बिटवीन द टू कोवेलेंट बॉन्ड्स present in the molecules. So that is known as your bond angle. So that is very important. Let's focus on it, how it has been represented. If you focus on, this is a bond angle I have written for methane. ठीक है, मीथेन you know CH4 होता है. ठीक है, अब now you are seeing that this thing mainly ये जो चीज़ें होती हैं ये represented by few things. जैसे यहाँ पे मैंने आपका जो वैल्यू लिखी हुई है या डैश लगा लो, जो ये साइन है ये रिलेट करता है आपका डिग्री का. अगर सिंगल लगा हुआ है ऐसे तो इट्स रिलेट योर मिनट्स, और अगर डबल है तो ये आपका सेकंड को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान देना. अच्छा, बॉन्ड एंगल जो है ना बेटा, व्हेन यू स्टडी फर्दर इन हाइब्रिडाइजेशन देन यू विल कम अक्रॉस ऑफ इट. ये बॉन्ड एंगल जो है वो डिपेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चेंज हो जाता है, या फिर लोन पेयर नहीं है तो ज़्यादा होगा. ये एक बात ध्यान रखना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन है, मीथेन में कहीं पर भी लोन पेयर नहीं होता, लेकिन वाटर है, वाटर में क्या है, लोन पेयर होता है, तो उसका जो बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है. ठीक है, और आपको देख रहा है इससे रिप्रेजेंट करेंगे डिग्री, ये मैंने डबल कोट्स रहेंगे तो आपके सेकंड को आप रिप्रेजेंट करेंगे. और लोन पेयर वाली बात जो मैंने बताई है वो हमेशा याद रखना कैसा होता है. ठीक है, उससे उसके बॉन्ड एंगल, इस बार बोर्ड में आया भी है क्वेश्चन कि जो स्ट्रक्चर्स की बात आती है तो बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. तो दिस इज़ अ पोर्शन विच यू हैव टू फोकस ऑन द पैरामीटर्स पार्ट. Now the next head is formal charge, that is present on an atom in a polyatomic molecule or an ion, that you have to keep it in mind. And individual atoms जो होते हैं ज़्यादातर वो present होते हैं ना nuclear molecules और polyatomic ions, they do not possess any charge. But in that case when you have a polyatomic ions then they have a charges on them. ठीक है, तो अब वो polyatomic जो ion word I have mentioned, what does it means? पॉलीएटॉमिक आयन. नाउ सपोज़ करो कोई है, जैसे आपने अमोनियम बनाया, सो इट इज़ पॉलीएटॉमिक क्योंकि डिफरेंट एटम्स का है ना. इसमें 1 नाइट्रोजन है और आपके 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये पॉलीएटॉमिक हुआ. आयन इसीलिए हुआ बिकॉज इट्स हैविंग अ चार्ज on in that case. So this is the charge that was present on that particular polyatomic ion. So this net charge is possessed by the ion as a whole. सबका ऐसे सब पे, ये H पे नहीं है, ये N पर भी है, ये आपका हाइड्रोजन पर भी है. So that is important. This is what your formal charge. And it's very important that the formal charge of an atom in a polyatomic molecule or an ion may be defined as equal to the difference between the number of valence electrons possessed by that atom in the free state and the number of electrons assigned to that atoms in the Lewis structure of the molecule or ion. So that is the definition of the formal charge. But I'll tell you how you can calculate the formal charge. Suppose I want to calculate the formal charge for a particular polyatomic ion.
or you can say a polyatomic molecule, then we have a formula. So formal charge is equal to the total number of valence electron in free atoms, ठीक है, माइनस total number of non bonding या lone pair electrons माइनस हाफ है, हाफ में हाफ के इधर ब्रैकेट है ना, तो मेरा पेज ख़त्म हो रहा है. आई एम राइटिंग हियर व्हाट यू विल राइट आउट. टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. So we are explaining with the help of an example of ozone. सबसे पहले we will make the structure for ozone. Actually this is the example of the coordinate bond. So you understand this thing when I'll complete the coordinate bond, but still I am trying to make it. Now 3 atoms of oxygen are there, ठीक है, and all the 3 oxygen atom, if you see their outermost orbit has 6 electrons, that we know. Now and all the 3 oxygen atoms needs 8 electrons to complete its octet, so everyone needs 2 electron each. सपोज करो दिस पर्टिकुलर 2 एटम दे गो फॉर शेयरिंग, है ना, इनने अपनी शेयरिंग कंप्लीट करी तो इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट, बट दिस पर्टिकुलर एटम इज़ नॉट कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट. अब शेयरिंग पे अगर ये चला जाए तो इसका 8 हो जाए, इसका यहाँ तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा. सो मीन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर टू ईयर, एंड दिस इज़ द केस ऑफ कोऑर्डिनेट. बेसिकली जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे इट विल लाइक दिस इज़ द केस. And these electrons are there over here. Only these 2 electrons are left जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे there are 4 electrons are left, that is नॉन बॉन्डिंग. यहाँ पे ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो 6 के 6 रहेंगे. सो लेट्स मेक द पॉइंट दैट इट इज़ द सेंटर 1, पुट इट 1 ओवर हियर. ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, ठीक है. दिस वे वी कैन मेक. नाउ वील स्टार्ट 1 बाय 1. अब इंडिविजुअल एटम का फॉर्मल चार्ज अगर हमें देखना है तो हम देखते हैं कैसे क्या पड़ेगा. ये ऑक्सीजन 1 एटम जो है 1 वाला है, हम इसको लेते हैं. सो फॉर्मूला लगाओ, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम. हर बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सारे उसके केस में 6 होंगे, ठीक है, क्योंकि हर बार हम 6 देख रहे हैं. नाउ माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. इसमें कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो 2 हैं. फिर माइनस हाफ है इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स, इधर से देखो कितने शेयर हो चुके हैं. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो कि इसके टोटल जो शेयरिंग पे जा रहे हैं वो 1 2, ये इसके साथ भी ये हो गए, ये भी इलेक्ट्रॉन है. टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग. सो यू विल गेट 6 माइनस 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू 6. तो यू विल गेट अबाउट +1. This will be your answer. Now let's focus on this oxygen atom. Now this particular oxygen atom जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो यही रहेंगे. अब इसमें देखो कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करें. 1 2 3 4 माइनस हाफ इंटू अब कितनों ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज़ इसमें तो ये 4 ही हैं पार्टिसिपेट करे. उधर तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 पार्टिसिपेट करे थे, इसलिए हमने 6 लिखा है. यहाँ पे क्या है 1 2 3 4. Then when you calculate it, what the answer will be 6 minus 4 minus 2, तो ये आपका 0 आ जाएगा. Now talk about the third oxygen atom, ठीक है. तो थर्ड ऑक्सीजन एटम है दिस वन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 6, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 रहेंगे आपके. माइनस हाफ and after half you will get it into, just see the number of electrons that are there which is bonding shared, है ना. तो इसमें बेसिकली शेयर क्या, उसने जो सिर्फ 2 ही तो लिए हैं, 2 these electrons has been taken by it, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए. तो बेसिकली व्हेन यू सॉल्व इट देन यू विल गेट इट -1. तो इंडिविजुअल एटम्स है, ऑल देम आर गेटिंग डिफरेंट चार्जेस. कि इस पर आप क्या चार्ज लगाएंगे, इस पर क्या लगाएंगे, इस पर क्या है. तो ये वाला है इसमें प्लस चार्ज लगेगा, ये वाला है आपका 0 रहेगा, ये वाला रहा आपका -1 रहा. तो यू आर गेटिंग द फॉर्मल चार्जेस. तो यू कैन मेक इट, जो आपने स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, तो आप कैसे बना सकते हैं. जैसे ऑक्सीजन आपने बनाया है जो सेंट्रली प्लेस था, अब उस पर सेंट्रली प्लेस 2 वाला जो था उस पर कितना चार्ज लग गया, प्लस, है ना.
ऑक्सीजन जो आपका ये था ना 1 वाला, इस पर आपका +1 चार्ज हो, ये आपने डबल बॉन्ड रिलेट करा हुआ है, ठीक है। इस पर आपने यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी अपने लिखी हैं, यही तो करा आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स। इधर आपके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इस पर क्या चार्ज लगना था, कोई नहीं, 0 लगना था, तो आप कोई चार्ज नहीं लगाओगे। ये आपको रेजोनेंस में बहुत हेल्प करता है। फिर आपने यहाँ लगाया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यू मेक इट 6। व्हाट इज़ द चार्ज वी हैव कैलकुलेटेड ओवर या -1, तो पुट इट 1, माइनस लगा दें। तो ये आया आपका, बहुत हेल्पफुल है कि रेजोनेंस पे आप जैसे पर्टिकुलर अपना मॉलिक्यूल लेते हैं उस पर आप चार्जेस लगा सकते हैं, ठीक है। तो दिस वे यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मल चार्ज ऑन अ एटम और इन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन। दिस वे यू कैन हैव द फॉर्मल चार्जेस ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स पे यू आर गेटिंग इट। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो मेक श्योर प्रैक्टिस दिस थिंग, फॉर्मूला याद कर लेना और हर बार जितना जब भी हो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन द पर्टिकुलर molecular ions. So this way we have covered up few parameters and few conditions for it. 11 we'll focus on the failure of the octet rule, and this rule states that you know that there are atoms which when they lose electron or gain electron or they share electron, then they complete their outermost orbit, and the outermost orbit or the valence shell contains 8 electrons, fine. For example, I am just taking the example of helium, neon. So neon में you know there are 8 electrons in its outermost orbit. So this is what octet rule, 8 electrons in the outermost orbit. But there were certain atoms in which we see that this octet rule is not valid. For example, I was talking about helium. So helium has 2 electrons in its first orbit, which is its first orbit कह लो या last orbit or the valence orbit कह दो. So it contains 2 electrons. So there are cases that some of the atoms were having less electrons than it, and some of them were having more electrons. So let's focus on certain examples. जैसे कि for example हाइड्रोजन अगर हम देखते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज़ 1, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज़ 1s1. सो इट होल्ड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, दैट इज़ द के शेल, है ना, ये भी हमारा के शेल है. सो फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन इज बीन देयर, तो मैक्सिमम दिस पर्टिकुलर शेल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और शेयरिंग पे चला जाए, या जो भी अगर हाइड्रोजन का आप मॉलिक्यूल बना रहे हो, देन इट विल गो फॉर शेयरिंग, देन ओनली दिस कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो उस कंडीशन में 1s2 हो जाएगा, तो यहाँ ऑक्टेट रूल फेल हो गया. सो द पॉइंट वॉज दैट देर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स इन द सेम मैनर. जैसे अमोनिया है, ठीक है, तो अमोनिया के केस में इफ यू फोकस ऑन हाइड्रोजन, अगेन इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है इनिशियली, एंड दे गो फॉर डिफ्लेट रूल. आप H2O ले लीजिए, HCl दे दीजिए, एवरी टाइम हाइड्रोजन है इज़ फॉलोइंग द सेम पैटर्न. एनीथिंग यू कैन फोकस, कोई भी हाइड्रोजन का आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए कोवेलेंट कंपाउंड्स में, देन यू विल सी दैट दे इट्स पर्टिकुलर इट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द K shell. But so it says that this particular these examples are showing that they are containing less electrons comparison to this thing in octet rule. You need 8 electrons, over here there are less than 8. So this was the case. But there were certain elements of certain groups. I am just want to tell you. I was telling you about certain elements of particular groups that they contain less than 4 electrons in their valence shell. So one of the example is this. Let's focus on the groups which are, I am writing the groups like group 1 is there, group 2 is there, group 13 is there. They have less electrons in their valence shell. So let's focus on it. BF3, boron, if you remember, its atomic number is 5, it's 1s2, 2s2 and 2p1. So outermost orbit is this, it holds 3 electrons. Let's focus on its structure first. So if you are making like that, so B, and we can make it F like this. You know F holds 7 electrons in their valence shell. So 7 you can make it like this. And boron we have seen 3 electrons, so 1 here, 2 here, 3. If you see this case, they will go for sharing, है ना, this manner if you focus on it. But what about the boron? With boron if you see 1 2 3 4 5, 1 2 3 तो इसके अपने ही हैं, 4 5 6 electrons. So it has 6 electrons, it has less electrons. They are not following up the octet rule, they have less than this thing 6. So this is not found that this rule was not considered to be the correct rule, and there were certain shortcomings or
defects were there in this in the octet rules. Then we came across certain other molecules, or you can say compound formation was there, where they were having the excess of more than 8 electrons. Let's go for PCl5. If you go for PCl5 for phosphorus, if you see it outermost orbit contains 5 electrons है ना, 15 होता है ना, तो अगर हम देखें 2 8 5 इस फॉर्म में, तो it has 5 electrons. Phosphorus can be placed centrally placed 1 2 3 4 5 is there. Then Cl1 2 3 4 5 यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. So you can make it. So 7 electrons are there. Now you just see, if you see this Cl, basically what happened, they need 1 electrons. ये तो अपना आराम से बना रहे हैं. And if you consider phosphorus, then how many electrons are there? 5 तो उसके अपने हैं, ठीक है, 5 उसके अपने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 1 इनके 1 2 3 4 5 टोटल होगा ये हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. दिस फॉर्म इट इज इस तरह के जो फॉर्मेशन में क्या हो रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, और उस उधर क्या था लेस था, उधर क्या था सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ना, बताया था ना 3 तो उसके और 3 अलग जो शेयरिंग पे गए, तो 6 यहाँ 8 से कम है, यहाँ 8 से ज़्यादा है. सो द ऑक्टेट रूल वाज यू कैन सी ना कि देयर वर 3 प्रॉब्लम्स. कौन कौन सा है? पहला, some elements follow the duplicate rules. Some elements were having less than 8 electrons. Some were having more than 8 electrons. So 3 possibilities were there. अब ये तीनों problems को overcome करा गया by different scientists and they give their views. So we'll discuss the views about it. Now we have Sugen's views or concept of singlet linkage. इसको हमने कंसिडर करा. तो उसमें जैसे हमारी जो प्रॉब्लम्स आई, फॉर एग्जांपल वी वर फोकसिंग अबाउट द PCl5 में यू वर सेइंग दैट यू वर प्लेसिंग इट, आई एम मेकिंग इट, देन आई लेट यू नो. सो दिस सिनेरियो वी हैव मेड इट PCl5 में. सो व्हाट हैपन, ही सेड, उनका जो तरीका था, जो उनका ये था कि सिंगलेट लिंकेज, जैसे अगर हम बॉन्ड पेयरिंग करते हैं तो आप देखते हो ना कि आप 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराते हो मिनिमम जो पॉसिबिलिटी होती, तो आप इसीलिए एक बॉन्ड बना देते हो, है ना. और उनका कंडीशन क्या थी कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो. तो उस केस में क्या हो जाता है कि हम जैसे कोवेलेंट के लिए ये बॉन्ड बनाए, जब हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन व्हेन वी आर यूजिंग देन वी शुड फॉलो अ सिंगलेट रूल, और उसके लिए सिंगलेट आपकी बॉन्डिंग रहेगी और सिंगलेट लिंकेज रहेगा फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ताकि हम ऑक्टेट बना सकें. उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो इट नीड्स, अगर हम क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन जितने भी क्लोरीन हैं दे हैव द पॉसिबिलिटीज़ कि भैया ये लोग क्या करेंगे, सब अपना, माई डायग्राम इज़ नॉट गुड, यू कैन मेक इट बाय योर ओन. सो दे आर जस्ट टेकिंग इलेक्ट्रॉन, इसको अंदर रख लेना, ठीक है, और ये इधर, ठीक है, ये अंदर ही है, राइट. बट फॉस्फोरस के केस में फॉस्फोरस नीड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट नीड्स ओनली 3 मोर. 5 उसके पास हैं और 3 और लेके वो कितना बना लेगा 8. तो वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स तो सारे लेगा जो उसको लेना है, लेकिन जो क्लोरीन्स के इलेक्ट्रॉन है उसमें से सिर्फ 3 क्लोरीन एटम्स के वो इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ये लिया और एक ये लिया, ठीक है. तो अब अंदर काउंट कर लो, पास फोकस कर रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 इसके अपने थे, इसका एक 6 7 8, इस तरह से वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स बना लेगा. तो ये कंडीशंस होती हैं सिंगलेट की. ऐसी पॉसिबिलिटी आपकी है ना SF6 में भी आती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड में, ठीक है. तो ये कंडीशन आप इसको भी मैं दिखा देती हूँ आपको. यू कैन फोकस ऑन इट, दिस फोकस ऑन इट. देखो उसमें भी है कि वो सल्फर नीड्स ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 जो है वो आपका हाफ सिंगलेट लिंकेज शो कर रहा है, बाकी कोवेलेंट बॉन्ड्स. सपोज वी आर कमिंग बैक टू हियर, नाउ वी हैव टू मेक द डायग्राम ऑफ इट. आपने फॉस्फोरस सेंट्रली प्लेस किया था, Cl आपने यहाँ रखे थे. अब जो Cls हैं आपके, जो कम्प्लीटली बॉन्ड फॉर्मेशंस आपके बना रहे थे, वो एक ये था, एक ये था और ये था. मैं बताया था ना ऐसे लाइन से इंडिकेट. और जो 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा था वो आप सिंगलेट फॉर्म में लिखेंगे ऐसे. तो दिस स्ट्रक्चर शुड लुक लाइक दिस. और जबकि अगर हमारा पीछे वाले कंडीशन जो था उसमें क्या हो जाता, हमारे ऐसे चल रहा था मामला, सारे के सारे कोवेलेंट, जो कि गलत था, क्योंकि ऐसे टोटल कितने हो रहे थे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इस कंडीशन कितने हो रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स. ये तो एक रूल हुआ. नाउ नेक्स्ट रूल इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी. So this is our next concept of maximum covalence. Sigwitz rule is been there.
Now he put that a few things he has said कि it's not necessary that atom should follow the concept of octet or they should achieve octet. It's not at all necessary, but he give the concept of this maximum covalency, that particular atom, a maximum covalency of an atom is been there, that is been only related to the position in the periodic table. मतलब उस particular atom की periodic table में क्या position है, उससे आप उसकी maximum covalency निकाल सकते हैं. जैसे उनने कुछ बातें कही, उन्होंने कहा जैसे फर्स्ट पीरियड के मेंबर हैं जो, उनकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो 1 होती है. अब पीरियड 2 के मेंबर्स हैं, उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी उनने 4 रखी. एलिमेंट्स जो थर्ड ग्रुप के, थर्ड पीरियड के हैं या फोर्थ पीरियड के हैं, देयर मैक्सिमम कोवेलेंसी सेट 6. तो दिस वाज द, और जैसे जो और हायर पीरियड्स हैं तो उनमें क्या 8 मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकती है. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इतना ज़रूरी नहीं है कि वो लोग ऑक्टेट रूल है ना फॉलो अप करें, और वो इस बेसिस पे कोवेलेंसी के हिसाब से वो लोग है ना आराम से फॉर्म कर सकते हैं. जैसे अभी हमने BF3 आपने देखा, तो उसमें आप वो जो बोरॉन है ये और क्लोरीन है, ये सेकंड पीरियड में आते हैं, तो उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है 4 है. यानी ऑलरेडी उनके पास 4 जो है वो कोवेलेंसी है, वो 4 बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं, है ना. यही तो देखा था, या 4 अनपेयर्ड हो सकते हैं, यही चीज़ हमने देखी थी तो कोवेलेंसी के केस में. सो दैट वाज द कंडीशन कि वो ईज़िली है कि उनको ज़रूरी नहीं होता है कि वो ऑक्टेट रूल फॉलो अप करें, दे कैन ईज़िली मेक देयर ओन मॉलिक्यूल्स. इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिगवेट्स व्यूज़, राइट.